আৰু প্ৰথমে এক ডাঙৰ খবৰ বিহাৰৰ ৰাজনীতিৰ নতুন মোৰ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যসভালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নীতিশ কুমাৰে জেডিইউৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নীতিশ কুমাৰ কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া হ'ব কোন যদিহে নীতিশ কুমাৰ ৰাজ্যসভালৈ যায় কোনে সম্ভালিব বিহাৰৰ মসনদ এই সন্দৰ্ভত সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময়জোৰা বৈঠকত মিলিত হৈছে জেডিইউৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি সঞ্জয় ঝা আৰু বুধবাৰে দিল্লীৰ পৰা পাটনাত উপস্থিত হৈ নীতিশ কুমাৰৰ সৈতে বৈঠক কৰিলে সঞ্জয় ঝাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিঙো ৰাওনা হৈছে বিহাৰ অভিমুখে অৰ্থাৎ নতুন এটা মোৰ আৰু বিহাৰৰ এতিয়া পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব পাৰে বিজেপিৰে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলিও চৰ্চিত হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ কাৰ নাম আছে চৰ্চাত বৃহস্পতিবাৰে বিহাৰৰ যি ৫খন আসন ৰাজ্যসভাৰ খালী হ'ব সেই আসন কেইখনৰ বাবে 16 মাৰ্চত নিৰ্বাচন আছে তাৰ বাৰে এখন আসনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব নীতিশ কুমাৰে আৰু দশমবাৰৰ বাবে ৰেকৰ্ড গঢ়ি নীতিশ কুমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছিল এতিয়া তেওঁ নিজৰ পুত্ৰৰ বাবেও ডেপুটি সিএমৰ পদবী নিশান্ত কুমাৰৰ বাবেও ডেপুটি সিএমৰ পদবী আগবঢ়াব নেকি তেনেকুৱা হিচাপ নিকাচ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে নেকি বা হঠাৎ এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কিয় এয়াও এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিন্তু দিল্লীলৈ যোৱাৰ মন নীতিশ কুমাৰৰ আৰু এয়া লক্ষণীয় বিষয় আৰু উল্লেখযোগ্য যে বিহাৰৰ 10-12 মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে নীতিশ কুমাৰ প্ৰথম 2000 চনত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল নীতিশ কুমাৰ দ্বিতীয়বাৰ 2005 চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নীতিশ কুমাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে 2010 চনত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল নীতিশ কুমাৰ একেৰাহে 2000 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে 10 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে নীতিশ কুমাৰে নীতিশ কুমাৰৰ ৰাজ্যসভা অভিমুখী এই যাত্ৰাৰ মাজতে বিহাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীক লৈ হৈছে চৰ্চাত নাম কাৰ আছে প্ৰথমে সম্ৰাট চৌধুৰীৰ কথা ক'ব পাৰি সম্ৰাট চৌধুৰীৰ পৰা প্ৰবীণ বিজেপি নেতা সঞ্জীৱ চৌৰাচিয়ালৈকে ৰাজ্যখনত নেতৃত্বৰ সম্ভাৱ্য পৰিৱৰ্তনক লৈ তীব্ৰ কল্পনা আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা লক্ষণীয় বিষয় যে নীতিশ কুমাৰ যদি এইবাৰ ৰাজ্যসভালৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ সদস্য আছিল তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল ৰেল মন্ত্ৰী আছিল কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী আছিল আন কৃষি মন্ত্ৰী তেওঁ আছিল পূৰ্বতে আৰু তেওঁ বিহাৰৰ যি দুখন সদনৰ তেওঁ সদস্য ইয়াৰ পূৰ্বে আছিল বৰ্তমানো তেওঁ সদস্য বিহাৰ বিধানসভাৰ তেনে বা বিহাৰ বিধান পৰিষদৰো তেওঁ সদস্য আছিলে তেনেহ'লে দুয়োখন সদনৰ বাবে আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ এই 4খন সদনৰ সদস্য হৈ পৰিব যদিহে তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ যায় সেয়াও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় আনহাতে নীতিশ কুমাৰৰ পুত্ৰ নিশান্ত কুমাৰ হ'ব বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ পুত্ৰ নিশান্ত কুমাৰ ৰাজনীতিৰে জড়িত নহয় কিন্তু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা নহয় নিশান্ত কুমাৰ তাৰ মাজতে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ওলোৱা চৰ্চাই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত নিশান্ত কুমাৰৰ প্ৰৱেশৰ ইংগিত বহন কৰিছে নীতিশ কুমাৰৰ ঘনিষ্ঠ এজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে নিশান্ত কুমাৰৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ ইংগিতেই দিছিল এতিয়া নিশ্চিত হৈছে যে নিশান্ত কুমাৰেই হ'ব বিহাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মঙলবাৰে জেডিইউৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিহাৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰৱণ কুমাৰে নিশান্ত কুমাৰৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰিছে দলটোৱে অতি সোনকালে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিব বুলিও জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত দিনবোৰত ৰাজ্যজুৰি চৰ্চিত হৈ আহিছিল নিশান্তৰ নাম আৰু নিশান্তে শীঘ্ৰেই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত ভৰি দিব বুলি এক প্ৰকাৰে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে শ্ৰৱণ কুমাৰে আৰু নিশান্তৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশে যুৱ প্ৰজন্মৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আশা পূৰণ কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে इंतजार का फल बहुत मीठा होता है राजनीति संभावना का खेल है और जो संभावना है उसकी चर्चा हो रही है जिस पर उम्मीद और भरोसा है उसकी चर्चा आने की हो रही है बहुत जल्द ही आपके बीच में निशांत कुमार जी होंगे और पार्टी के महत्वपूर्ण दायित्व को भी निर्वहन करेंगे बिहार के लोगों की जो निगाह है बिहार के नौजवानों के जो आशा के केंद्र हैं बहुत जल्द ही यह तोहफा होली के अवसर पर ही लोगों को मिलेगा আৰু সমান্তৰালভাৱে বিহাৰৰ মন্ত্ৰী তথা জেডিইউৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় চৌধুৰীয়েও ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লগতে নিশান্ত কুমাৰৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীজনে নিশান্তক আদৰিবলৈ দল সদায় সাজু বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজয় চৌধুৰীয়ে राज्यसभा में एक चीज तो पक्की है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएंगी और उसमें से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे
ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। और এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো पटनार পৰা আমাৰ সাংবাদিক शैलेंद्र कुमाৰৰ সৈতে। शैलेंद्र, तो अभी फिलहाल कौन सी ये चर्चा में है कि सीएम की जो पोस्ट है, पोजीशन है, वो बीजेपी को मिलेगी या फिर जेडीयू? और नीतीश कुमार, जो खबर अभी आ रही है, नीतीश कुमार कल वो अपनी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं 11:30 बजे सुबह। बिल्कुल, देखिए तय हो चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और इस पर मुहर भी लग चुकी है खबर पर। और निशांत भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे और जल्द ही निशांत भी सरकार में या फिर पार्टी में बड़े पद पर दिखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे तो यहाँ बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस विषय पर भी अभी जो खुल करके कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इतनी आसानी से जदयू मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो पहले से बातचीत चल रही है, उस बातचीत के अनुसार संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि भाजपा का भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है और 2 डिप्टी सीएम जदयू की तरफ से बनाए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर अभी चर्चा चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना आएंगे और उसके बाद जब बैठक होगी उसमें ये चीज़ें तय कर ली जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया था, वो अब साफ हो गया है कि राज्यसभा के बहाने नीतीश कुमार अपनी जो सियासत का जो रिटायरमेंट प्लान है वो उन्होंने बना लिया था। और अब जब कल नॉमिनेशन होना है तो इस बात का खुलासा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अब इंतजार इस बात का है कि जो एनडीए घटक दल में 2 बड़े दल बीजेपी और जदयू में ये देखना होगा कि इन दोनों दलों में से मुख्यमंत्री किसके होते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतनी आसानी से कोई नहीं चाहता है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो हाथ से चले जाए और इसी की लड़ाई होती है। तो ऐसे परिस्थिति में आसानी से बीजेपी के पास ये कुर्सी चली जाएगी या भी इसकी भी संभावना कम है। लेकिन जो अंदर खाने से अभी तक की खबर आ रही है या इसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, उस चुनाव में भी अब जदयू को काफ़ी कम सीटें थी तो बीजेपी की तरफ से ही नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की गई थी। इस बार भी पहले ही नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की गई। तो कुछ संभावनाएं ऐसी भी दिख रही हैं साफ तौर पर कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन इस पर अभी आधिकारिक रूप से किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अब किस दल का मुख्यमंत्री अगला होगा, बीजेपी या जदयू, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का सकते हैं। नीतीश कुमार की ये जो सडन जो डिसीजन है उसके आड़ में क्या हो सकता है? वो 75 के हो चुके हैं 1 मार्च को शायद। तो क्या वो एज रिलेटेड या फिर वो चर्चा में था ये विषय, लेकिन काफी बार वो पार्टी से वो डिनाई भी की गई थी। तो क्या हो सकता है इसके पीछे जो रीजन है? देखिए, सबसे बड़ा कारण उनका स्वास्थ्य है। जिस तरीके से लगातार उनकी तबीयत खराब होती जा रही है या फिर हाल के दिनों में जो उनके बयान आए या जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो सब देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो तबीयत है वो अच्छी नहीं है। और उम्र अधिक होने के कारण जो पहले नीतीश कुमार के तेवर थे, जो जैसे नीतीश कुमार काम करते थे वैसे अब काम नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। काफ़ी उनकी उम्र भी हो चली है और स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रह रहा है। इसके कारण नीतीश कुमार ने अपना ये जो रिटायरमेंट प्लान है वो बनाया है। लेकिन अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाना चाहते हैं कि यदि वो राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में उनकी पार्टी का जो बागडोर है, जो उनका कुनवा है, उन्होंने जो यहाँ पर जातीय समीकरण बनाई, जो गोलबंदी की, उसे उनका जो पुत्र निशांत है वो आगे बढ़ाए। इस बात को लेकर के भी कयास चल रहे थे पिछले कई महीनों से और अब उस पर भी पटाक्षेप हो गया है कि निशांत बिहार की राजनीति में आएंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे। सरकार में भी उन्हें बड़ा पद मिल सकता है या फिर जदयू पार्टी में उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है ताकि मुख्य धारा की राजनीति में निशांत आ सके और अपने पिता की विरासत को भी संभाल सकें। जी
जी शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी की तरफ से जो नाम सामने आ रही है या फिर जो जिनकी चर्चा हो रही है, तो सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्योंकि इस वक्त जो 2025 की जो इलेक्शंस थी उसके पहले भी सम्राट चौधरी का नाम चर्चा में था कि सीएम कौन हो सकते हैं। तो सम्राट चौधरी के अलावा भी और किन किन के नाम हैं? देखिए, बीजेपी की यदि हम बात कर लें तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले आता है। उसके अलावा भी कई चेहरे हैं, कई नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो जातीय सियासत है, जातीय गोलबंदी है, उसका खास ख्याल रखना होगा। और ये सभी लोग जानते हैं कि इतनी आसान बिहार में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की राह नहीं है, और जो वोट बैंक है उसे कैसे संभाल के रखा जा सके। तो ज़्यादा उम्मीद इस बात की ही जताई जा रही है कि कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक ये है बिहार में। और इसी वोट बैंक के बदौलत नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक बिहार में शासन किया, 20 वर्षों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और बीजेपी के साथ भी लंबे समय तक नीतीश कुमार रहे, और इसका फायदा बीजेपी को भी हुआ। तो बीजेपी ये भी चाहेगी कि कम से कम नीतीश कुमार का जो कोर वोट है उसे जोड़ के रखें, और कोई उस कुर्सी पर जाता है तो उस कुर्सी पर उसी जाति समीकरण को साधने वाला लोग हो। और सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं वो समाज लवकुश समाज है, और लवकुश एक बड़ा वोट बैंक है। नीतीश कुमार के चेहरे के सामने हम देख लें तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को साधने के लिए सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो सम्राट चौधरी का है। लेकिन चूंकि इस फैसला बीजेपी के बड़े शीर्ष नेतृत्व को लेना है, बीजेपी भी चौंकाने वाला फैसला करती है, तो देखना होगा कि यदि बीजेपी के खाते में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो वो किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। जी शैलेंद्र, धन्यवाद हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। और সেয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে জনাইছে যে পদ পৰিৱৰ্তন এটা হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু নীতিশ কুমাৰৰ যি তেওঁৰ এক ধাৰা যি তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিলে সেয়া তেওঁ পুত্ৰৰ হাতত এক প্ৰকাৰ দায়িত্ব দি তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ গৈ ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ, যিহেতু তেওঁ স্বাস্থ্য শেহতীয়াকৈ বেয়া হৈ থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাকেও সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছিল। তেনেকৈ তেওঁ নিজৰ এক প্ৰকাৰ যি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পৰিকল্পনা তেওঁ কৰিছে বুলিও এই মুহূৰ্তত চৰ্চিত হৈছে। কিন্তু যি নহওক ৰাজ্যত বিহাৰত পৰিৱৰ্তন এটা হ'বলৈ গৈ আছে।